A very good morning, everyone. I welcome you back in the e-learning program organized by Sri Vidyadeesh Vidya Sankul. This is our 10th lecture of subject SPNCC. Again, we will continue with the chapter number 2 of part 2, that is transfer of share and share transmission. The words look so similar but has a very big differences, and this question, the only leftover topic of this chapter is the difference between the two, right? The transfer of shares and transmission of the shares. Okay, this question is very important. It could be asked in your exam for almost 4 marks, and the way they have drawn the paragraph and written it so nicely, same way only we could write it. Okay, mentioning the point is very important. It will create your good impression while giving exam. So make sure that you make such kind of boxes and write the differences in this way only, so it will make your answer very look attractive. Okay, so we'll start with meaning. What does it mean? So whenever you start any difference, just make sure first you clearly define the meaning of two terms. That will only make them separate. So words that you choose should be proper. That should not be your own, but try to cover when it comes to meaning and definition. Try to write the words which are already given in your textbook rather than forming your own sentences. Although you can form your own sentences, but you just have to make sure that you use the correct words. Alright, so when the shareholder voluntarily passes ownership of shares to another person in accordance with the provision of Companies Act and Articles of Association, it is called transfer of share. Okay, so when a shareholder voluntarily passes ownership, the word voluntarily is written. Okay, तो जब खुद के मन से अगर शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो in that it is called share transfer, but you have to make sure that you follow the Companies Act and Articles of Association's provisions. Okay, when you are transferring the ownership, you are transferring your entitlement to somebody else, but willingly, voluntarily, खुद से. Okay, तो उसको बोलते हैं share transferred. But when shareholder dies or he is declared by the court to be an insolvent or lunatic, then such compulsory, इसमें क्या आया word compulsory transfer, इसमें क्या आया था voluntarily transferred. Then this transfer of share under the law is called transmission of the shares. Alright, देखो दोनों में differences, इसमें volunteer आया, इसमें compulsory आया. Condition क्या है, इसमें खुद से वो अपनी ownership pass कर रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, वो either they are dying or insolvent or the lunatic they are becoming, and then they are transferring their entitlementship. Moving on to the second point, that says that circumstances, in which circumstances shares are being transferred or they are being called transmission. Okay, it is voluntary transfer. When share transfer होता है तो voluntarily transfer होता है. Shareholder may transfer shares or share at any time according to the provision of Companies Act. Any time बोला है, कभी भी कर सकते हो. And voluntarily, तो इसमें कोई condition नहीं है. It's just your wish. If you wish to transfer, you transfer. If you don't, you don't. And in case of death, insolvency, or person being declared lunatic or unsound-minded, then being declared lunatic, death case offers in single-person company, transmission of share take place. So in such 4 conditions, first is death of the person, insolvency, and person being declared lunatic, and death in case of a single person company. Okay, so 4 condition हो गई. Okay, ये condition आती है तो transmission of shares आता है. ओके, जब वॉलंटरीली खुद से ट्रांसफ़र हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, पर ये अगर कंडीशंस आ जाती है तो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन.
कंसेंट मतलब मंजूरी देना, आप कंसेंट करो, अग्री कर रहे हो। इन वॉलेंटरी ट्रांसफ़र कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी इज़ एसेंशियल, दोनों पार्टीज़ की एसेंशियल है कंसेंट देने की। बट इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज इज़ नॉट नेसेसरी और नॉट पॉसिबल। इफ़ अ पर्सन डाइज, किसकी परमिशन लेने जाओगे? और इफ़ द पर्सन बिकम्स ल्यूनेटिक, अगर वो अनसाउंड माइंड हो चुका है तो आप कैसे परमिशन लोगे उसकी? ओके, सो अगर इंसॉल्वेंसी है तो भी उसकी परमिशन तो आप नहीं लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज कोर्ट ही उसकी पूरी सारी चीज़ें डिसाइड करता है। सो ऑब्वियसली योर कंसेंट इज़ नॉट नीडेड। ओके, सो बोथ द पार्टीज़ की कंसेंट कई बार नहीं भी चाहिए होती है। ओके, नेक्स्ट इज कंसिडरेशन, मतलब कितना पे करोगे। शेयर ट्रांसफर इज अराइज ड्यू टू वैलिड अग्रीमेंट ऑफ टू पार्टीज, सो कंसिडरेशन इज असेंशियल। ये जब तुमने सीखा था ऑफर होना चाहिए, अग्रीमेंट बनना चाहिए जब दोनों के बीच में, तो अग्रीमेंट जब होता है तो उसमें ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस हम उसको इंटीमेट करते हैं, प्लस उसकी कुछ कंसिडरेशन भी होती है। तो यहाँ पे एज सच कि ये दोनों पार्टीज़ की मर्ज़ी से हो रहा है। ओके, इट इज़ अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, सो कंसिडरेशन इज़ एसेंशियल, तो कंसिडरेशन आपको देना पड़ेगा। इन ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स, शेयर होल्डर डज ownership and loses ownership, and ownership is shifted to legal representative. This is not selling, so there is no consideration. यहाँ पे चीज़ें बेची नहीं जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। लीगल जो हायर होता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके ये राइट्स है और उसके वो राइट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे किसी और पार्टी को ये चीज़ें बेची नहीं जा रही है, सो दैट्स वाई कंसिडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी। अभी आप बेचोगे कोई चीज़ तो आप उसमें से कुछ एक्सपेक्ट करोगे ना कंसिडरेशन, पर अगर आप ट्रांसफ़र सिर्फ ले रहे हो, ऑनरशिप सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है, सो इट विल नॉट बी डन। स्टैम्प ड्यूटी, इन शेयर ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ। If the stamp duty is not affixed as per law, share transfer is not valid in physical shares. While in case of in a transmission of the share there is no consideration, so stamp duty is not essential. ओके, क्योंकि यहाँ पे आप बेच रहे हो शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप प्रॉफिट अर्न करोगे या लॉसेस इनकर करोगे तो कंपनी तो गवर्नमेंट आपसे स्टैम्प ड्यूटी लेगी, और अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी सही से नहीं लगाई तो आपके फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र होते नहीं है। डीमटेरियलाइज्ड शेयर में कोई स्टैम्प ड्यूटी की ज़रूरत नहीं है, उसमें टैक्स लग जाती है, सो इसलिए वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं आती है। पर फिज़िकल शेयर्स है आपके, तो अगर आपने उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाई तो आपका ट्रांसफ़र जो होगा वो वैलिड कहलाएगा नहीं, एंड इट विल बी इनवैलिड ट्रांसफ़र, और आपका ट्रांसफ़र विल नॉट टेक प्लेस। बट यहाँ पे ट्रांसमिशन में कोई आप पैसे ही नहीं ले रहे हो, तो पैसे नहीं ले रहे हो तो फिर स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगेगी, ना आपने प्रॉफिट कमाया है ना फिर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। So these are the 5 points to be taken care. 107 पे now turn the page, come to 108, and the 6 point says membership is obtained by transferee after the approval of board of directors and his name is entered into the register of member. Okay, membership is obtained by transferee after the approval of बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, जो ट्रांसफरी होगा जिसको शेयर्स मिले हैं उसका अभी नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बाद उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऐड हो जाएगा। वाइल लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल टू राइट ऑफ मेंबर्स एंड कैन क्लेम डिविडेंड, उसको मीटिंग में शायद ना भी बुलाए, उसके राइट्स नहीं भी हो, पर उसको ही कैन क्लेम द डिविडेंड। ओके, ही कैन हैव द राइट्स ऑफ मेंबर। ओके, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखो ये लीगली जो पर्सन जो हायर किया है ना वो टेम्परेरी बेस के ऊपर है, आफ्टरवर्ड्स तो कोई ना कोई डिसीजन आ जाता है और उसके जो एक्चुअल जो इसके शेयर के एंटाइटल्ड होते हैं पर्सन उनको ये शेयर्स मिल जाते हैं। बट एज सच अभी कोई डिसीजन नहीं आया होता है, तो टेम्परेरीली वो उसके जो कोर्ट ने जो पर्सन को अपॉइंट किया होता है इसका नाम आता है, तो इसलिए बार बार फिर वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए अभी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आता है, पर उसको सारे मेंबरशिप के राइट मिलते हैं, प्लस उसको डिविडेंड और जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे उसको मिलते हैं।
The procedure of board of director is required following the provision of articles of association. Then legal, while in case of transmission, legal representative sends evidence supporting his rights obtained through court of the company for getting his name registered in member. तो दोनों में देखो बिल्कुल अलग अलग प्रोसीजर्स है. ओके, प्रोसीजर फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड. A procedure of the board of directors is required following the provision of articles of association. They have to follow the procedure which is being described in articles of association. While ट्रांसमिशन में थोड़ी प्रोसीजर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जो ऑनर ऑफ द शेयर्स है वो अवेलेबल नहीं है. सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेंस एविडेंस सपोर्टिंग हिज राइट्स, जैसे हमने प्रोसीजर में भी देखा था कि वो अपना पूरा जो भी उसके पास एविडेंसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजेगा. सपोर्टिंग इज राइट ऑब्टेन थ्रू द कोर्ट, जो कोर्ट ने भी उसका जो भी लेटर्स दिए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर है या उसको डिक्लेरेशन लेटर्स होते हैं, वो सारे इसको यहाँ पे जमा करवाने रहेंगे. टू कंपनी फॉर गेटिंग हिज नेम रजिस्टर्ड एज मेंबर, जैसे कि अगर डेथ ऑफ द पर्सन है या इंसॉल्वेंसी है तो ऑलरेडी पर्सन उसका मेंबर बन चुका होता है, राइट. तो ऑलरेडी अभी उसको किसी और को भी प्रूफ करना नहीं है या उसको शेयर्स देने नहीं है, अभी वही उसका अल्टीमेटली ऑनर होने वाला है. तो जब सारी प्रोसीजर हो जाती है तो फिर उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाता है. नंबर 8 इज रिफ्यूजल. व्हेन कैन यू रिफ्यूज? So board of directors may refuse the transfer of share if such refusal is in the interest of the company. अगर वो कंपनी के इंटरेस्ट में है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास राइट है कि वो शेयर ट्रांसफ़र को रुकवा दे. But generally, in transmission, the directors of the company cannot refuse the transmission of the shares, क्योंकि ये लीगल मैटर आ जाती है, इसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है. ये इस पर तो सिर्फ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखना है ट्रांसफ़र में, बट ट्रांसमिशन में उसको सारे लॉज जो कोर्ट ने जो भी ऑर्डर्स दिए वो सब कुछ कंपनी को मानना पड़ेगा. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. ओके. Number 9 is responsibility. The original shareholder does not have any responsibility after transfer of shares is complete. Okay, जैसे ही सपोज मेरे को मेरे शेयर किसी को ट्रांसफ़र करने बेच देने हैं तो मैंने शेयर ट्रांसफ़र कर दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म. अब आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. बट इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर देयर इज़ नो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है. पर्सनली उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, वो घर से कोई पैसे नहीं देने वाला या कोई उसकी पर्सनल लायबिलिटी में नहीं आता है ये. However, he has to accept the responsibility arising due to shares. पर हाँ, अगर सपोज बाद में उसके कोई ले लेने के बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है तो फॉर दैट द रिप्रेजेंटेटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल. सो इसमें अच्छा है कि ट्रांसफ़र में कि ट्रांसफरर जो होता है वो फ्री हो जाता है वंस ही हैज़ ट्रांसफर्ड. Okay, but here the representative has to accept all such responsibility which arises due to shares. तो वो उसको accept करनी रहेगी. Number 10 is if company refuse to transfer without valid reason, that is right to go to a tribunal. Tribunal मतलब कोर्ट के पास जाने का. कोर्ट से एक्चुअली एक स्टेप नीचे होता है ट्रिब्यूनल. ओके. So if a company refuses to transfer without valid reason, the shareholder has a right to go to tribunal. जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये पॉइंट में देखा ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है, शेयर होल्डर्स को ऐसा लग रहा है कि यार ये कंपनी के इंटरेस्ट में है पर वो मेरे इंटरेस्ट में तो नहीं है और कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है कि ये लोग मेरा ट्रांसफ़र रुकवा रहे हैं, तो फिर जो शेयर होल्डर होगा उसके पास राइट होगा कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाए और कोर्ट में बोले कि भाई मेरा ये ट्रांसफ़र मुझे करवाना है और ये बिना कोई रीज़न कि मेरा ट्रांसफ़र रुक रहा है. तो द शेयर होल्डर हैज़ अ राइट टू गो टू ट्रिब्यूनल. बट ट्रांसमिशन में क्या होगा? द कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज द ट्रांसमिशन एंड सो द क्वेश्चन ऑफ गोइंग टू ट्रिब्यूनल डज नॉट अराइज. पर यहाँ पे तो ऐसे वी हैव सीन कि डायरेक्टर मना कर ही नहीं सकता, राइट. डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. सो दैट्स वाई देयर इज़ नो पॉइंट कि आपको
कोर्ट के पास जाना पड़े, राइट। द डायरेक्टर कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज़ द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, इसीलिए ट्रिब्यूनल के पास जाने का कोई क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है, ओके, कि राइट है या नहीं, उनको रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों जाएंगे कोर्ट में। ऑलराइट, सो दीज आर द 10 पॉइंट्स विच आर आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्वेश्चन को तो मैं बोल रही हूँ 5 स्टार्स दे दो कि दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So make sure that you should be doing this question very nicely because this is going to be asked in your exam for sure। और टेस्ट में तो ये जब टेस्ट होगी ना ये चैप्टर की, तो ये तो मैं क्वेश्चन पूछने ही वाली हूँ। एंड टेस्ट में इनसाइड द लेसन आई कैन आस्क यू सो मैनी क्वेश्चन, सो मेक श्योर दैट यू रीड द लेसन वेरी केयरफुली। ऑलराइट, सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस चैप्टर जस्ट डू लेट मी नो। ऑलराइट, वी विल कम टू दिस इज, ये एसपी की बुक में ना ये चीज़ बहुत अच्छी दी होती है, व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, दिस इज बेसिक समरी दैट यू कैन जस्ट रिकॉल। तो जब रिवाइज करते हो तो आप ये रिकॉल भी कर सकते हो इसमें से ईजीली, राइट। सो यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर होमवर्क। आज का होमवर्क थोड़ा ज़्यादा है, कंप्लीट कर देना। जिन लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस करे होंगे तो उनको तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी कि आधा से ज़्यादा वर्क तो तुम्हारा हो चुका होगा। सो 5th क्वेश्चन वॉज येट लेफ्ट टू डिस्कस। So explain the importance of share transfer. Now I think I don't need to discuss it because everything is from textbook itself and all these questions are being done. Okay, so your homework is to complete fair book work in your fair book. So by the end of this chapter lecture, I would not ask you this time to write the questions related to chapter 3 जो आज हम start करेंगे, but yes, I'll definitely ask you to complete lesson number 1 and 2. And I'm going to check it very personally. मैंने मेल ID ले लिया है and I'm going to check it. So make sure that after completing this, watching this lecture, your chapter 2 in your fair book should also be completed by today itself. All right. So we'll begin with chapter number 3, that is debentures. So in this you will learn all about debentures. Previous 2 chapters में you have learned about shares. Okay, what is share and how these shares are to be transferred and what rights a shareholder has. All such things you have learned. Now in this chapter you are going to learn about debentures. So what is a debenture first of all? तो डिबेंचर पहली बात तो ये है कि इट इज़ एन डेट ऑफ द कंपनी, ये उसकी कंपनी की ने बोरोड मनी है। ओके, जैसे शेयर्स को हम बोलते हैं ना कि ऑनरशिप मनी है, शेयर होल्डर्स ऑनर्स होते हैं, ओके, वैसे ही डिबेंचर्स आर नॉट द ऑनर्स, ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ द कैपिटल, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑनरशिप। वो ऑनर्स नहीं है कंपनी के, कंपनी ने उनसे पैसे उधार पे लिए हैं। इट इज़ अ डेट फॉर कंपनी, ओके, कि बोरो करे हैं कंपनी ने लोगों से, एंड फॉर दैट दे विल बी पेइंग देम इंटरेस्ट। जैसे शेयर्स पे तुमको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, पर डिबेंचर पे तुमको क्या मिलता है, तुमको इंटरेस्ट मिलता है। एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो तुमको हर साल उसके ऊपर मिल जाता है। इनफैक्ट उनके नाम ही ऐसे होते हैं, 7% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स, तो वो नाम ही उनके ऐसे रखे जाते हैं। इन योर बुक ऑल्सो, in your accounts also you will be getting the journal entries of debenture holders. Okay, so you should be knowing what debentures are. Debentures are the borrowed money for the company, and जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है ना, जब कंपनी बंद हो जाती है तो उस टाइम पे सबसे पहले जिनको रिटर्न मिलता है, तो बोरोड मनी में शेयर होल्डर्स से पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले जिनको मिलता है, दे आर द डिबेंचर होल्डर्स, बिकॉज दे आर नॉट द ऑनर्स, बट पहले हम जिनका उधार होता है लोगों पे उनको पे करते हैं, रादर देन पेइंग इट टू द ऑल सच ऑनर्स। सो फर्स्ट इट विल बी पेड टू डिबेंचर होल्डर्स. Now let's read it, what introduction says to us. In today's modern times when joint stock companies need capital for long time period, they issue shares or debentures to raise
कैपिटल। मॉडर्न टाइम में अभी लोगों को बिजनेस बहुत एक्सपांड करना है, उनके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन and globalization. Because of such things, business has become very easier in our country, and to grow your business you need capital. ओके तो और जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाते हैं तो उनको कैपिटल रेज करना भी इजी हो जाता है। तो वो कैपिटल किसके थ्रू रेज कर सकते हैं, या तो शेयर्स इशू करें, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स, या तो फिर वो डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं जिससे वो कैपिटल बोरो कर सके। डिबेंचर मीन्स बोरोड कैपिटल, ये वन लाइन में भी आ सकता है। ओके इट कुड बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज। डिबेंचर मीन्स डैश, तो इट्स अ बोरोड मनी। डिबेंचर इज डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द कॉमन सील, उसके ऊपर कॉमन सील लगा होता है कंपनी का, ऑफ द कंपनी फॉर रेजिंग डेट एंड एक्नॉलेजिंग द डेप्ट, ताकि जो उसको हमको देवे अपना पैसा तो उसके पास एक वैलिड प्रूफ रहेगा कि हाँ कंपनी का कॉमन सील है, उसके ऊपर बोरोवर्स को भरोसा आएगा कि ये कोई ऐसा ही डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें कॉमन सील लगा हुआ है, मतलब इसमें कंपनी फुली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके एक्नॉलेजिंग द डेप्ट, उस पर लिखा होगा कि कंपनी ने हमसे इतना उधार लिया है। द इंटरेस्ट ऑफ डेट रेज्ड थ्रू डिबेंचर इज पेड एट प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट मतलब पहले से डिसाइड किया हुआ रेट, जैसे ही वो इशू होते हैं एज आई टोल्ड यू उसी टाइम पे उसका रेट डिसाइड होता है कि 5% डिबेंचर्स है, ये 6% है, तो मतलब प्री डिटरमाइंड उसका इंटरेस्ट होता है जो उसके ऊपर आपको आउटकम मिलेगा वो फिक्स होता है पहले से ही। फॉर दिस कंपनीज क्रिएट अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनीज। ओके इसके लिए कंपनी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करती है अपनी कंपनीज की असेट्स के ऊपर, मतलब एज अ रिजर्व। अभी आप जैसे दे रहे हो राइट, कि सपोज कि इफ़ यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम द पीपल, सो पीपल विल ऑल्सो आस्क यू दैट व्हाट इज आर सिक्योरिटी। अगर हम आपके डिबेंचर्स ले रहे हैं राइट, आप हमसे पैसे उधार ले रहे हो, आप बोल रहे हो 5% इंटरेस्ट दोगे, सो फॉर एन एग्जाम्पल आप हमारे पैसे वापस ही नहीं दे रहे हो तो हम किसके पास जाएंगे। तो इसीलिए कंपनी उसकी असेट्स के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करती है, विच मीन्स कि वो सिक्योरिटी के लिए रखती है कि इन केस के अगर कंपनी नहीं पे कर पाई तो पहले ये जो असेट्स है जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करे हैं जो असेट पे, तो वो असेट पहले बेची जाएगी और सारे डिबेंचर होल्डर्स को उसका अमाउंट रीपे हो जाएगा। ओके डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में आती है, पूछी जा चुकी है बहुत बार SPCC के बोर्ड के एग्जाम में। सो द टर्म डिबेंचर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड डिबेर। डिबेर मीन्स व्हाट, डेट, ओके उधार। Thus, it can be said that debenture is a document denoting debt of the company. It's nothing but a document itself. और वो क्या डिस्क्राइब करता है कि आपके it's a debt on the company. कंपनी के ऊपर इतना उधार अमाउंट है। Okay, the debenture is a type of document issued under the common seal of the company acknowledging the debt. ये 2 words याद रख देने हैं, that is it is under the common seal and acknowledging the debt. उधार आपका डिस्क्राइब करा है और इसके ऊपर कॉमन सील कंपनी की लगी हुई है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन विच इज़ टू बी डन बाय यू, सबको लर्न कर लेनी है विदाउट थिंकिंग मच। सो लेट्स रीड अहेड। यस अगर इसका उसका अगर डेफिनेशन आती है तो ये ईजीएस्ट डेफिनेशन है, तो ये ज़रूर कर लेना। हालांकि दूसरी डेफिनेशंस भी दी है, बट इफ़ यू आर बीइंग आस्क्ड अ डेफिनेशन यू जस्ट कैन राइट वन एंड दैट विल बी सफिशिएंट। A document containing the acknowledgement of indebtedness issued by the company under its common seal, giving undertaking to repay the debt at a specified rate at the option of the company, and in the meantime to pay interest thereon fixed an interval stated in the debentures. Okay, debenture is a document. Okay, contains what? एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनडेटनेस, विच मीन्स कि ये आपको एक्नॉलेज करवाती है, याद दिलाती है किसकी, इनडेटनेस ने कि आपको इतने पैसे आपके ऊपर डेट है, आपके ऊपर उधार है, इतना आपको देना है। इशूड बाय हुम, इशूड बाय द कंपनी, अंडर व्हाट, अंडर कॉमन सील, वो कॉमन सील लगा के देनी है। गिविंग अंडरटेकिंग टू रीपे द
द डेट, और वो अंडरटेक लेती है कि हाँ हम लोग ये रीपे कर देंगे एट अ स्पेसिफाइड रेट एंड द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। ओके, वो स्पेसिफाइड रेट शेयर होल्डर्स, ये डिबेंचर होल्डर्स नहीं डिसाइड करेंगे, बट कंपनी डिसाइड करेगी हम आपको इतना ही पे कर सकते हैं, आपको लेना है तो आप लो, आपको पैसे उधार देने हैं तो दो, राइट। एंड इन द मीन टाइम टू पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी कितने इंटरवल्स में होगा, कि ईयरली होगा या फिर 6 मंथ्स में देंगे, तो वो सारी चीज़ें भी उस डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब करी हुई होनी चाहिए। ओके, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ द कंपनी। तो कैसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कॉमन सील लगी हुई होगी? क्या एक्नॉलेज करता है? एक्नॉलेज द डेट ऑफ द स्पेसिफाइड अमाउंट, की इतने अमाउंट का डेट है कंपनी के ऊपर आपकी, और सो वो भी डिस्क्राइब करेगा। इन विच टिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड। ओके, कि कितने टाइम के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देंगे, कि 10 साल के डिबेंचर्स हैं, 5 साल के हैं, 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो वो टाइम ड्यूरेशन भी लिखा होगा। इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट इज पेएबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्ट भी स्पेसिफाई कर देंगे कितना आपके डिबेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द असेट ऑफ द कंपनी, कि चार्ज भी क्रिएट किया जाता है, मतलब आपके डिबेंचर दे रहे हैं तो उसके सामने आपको सिक्योरिटी भी देते हैं कि इन केस कंपनी आपके डिबेंचर्स को सही टाइम पे रीपे नहीं कर पाई, पे बैक नहीं मिला आपको, तो you also have one right, I would say, that you can also save your interest. You also have some कि एक तुम्हारी भी सिक्योरिटी रहती है कि असेट्स तुम्हारी वो सिक्योर करके जाते हैं। Thus joint stock companies established under the Companies Act issue debenture for long term कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड होती है तो वो डिबेंचर्स इशू करते हैं। द डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आफ्टर फिक्स्ड पीरियड, और उसको फिक्स पीरियड के बाद उसको रिडीम किया जाता है, मतलब उसको डिबेंचर्स कंपनी वापस ले लेती है और उनके पैसे रीपे कर देती है। एज इट वॉज रिटन के टिल व्हेन विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड, तो वो भी जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तभी आपको स्पेसिफाई कर देती है कि इतने सालों के बाद आपको कंपनी डिबेंचर्स वापस कर देगी, रिडीम हो जाएंगे आपके डिबेंचर्स। A relationship of a debtor and creditor is created. Okay, relationship of what? Debtor and creditor is created, कि आप उनके डेटर हो और आपके लिए वो क्रेडिटर है, बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर। ओके, कंपनी के लिए आप डेट क्रिएट करो, आपके लिए वो क्रेडिटर्स हो जाते हैं, दे विल बी पेइंग यू बैक। A debenture holder does not get a right to vote in the company. उसके पास शेयर होल्डर्स की तरह वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो कंपनी का कोई भी डिसीजन होगा तो उसमें डिबेंचर होल्डर्स कभी भी वोट नहीं कर पाते। And he cannot participate in management of the company because voting is part of management। कोई भी decision होता है, this is administrative or any decision which company takes, तो management related या any related तो उसके लिए डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई भी राइट्स होते नहीं है, क्योंकि आप डेटर हो, डिबेंचर्स होल्डर्स आर डेटर फॉर द कंपनी, दे आर नॉट द ऑनर ऑफ द कंपनी। ऑनर्स कौन होते हैं? जो शेयर कैपिटल होती है वो ऑनर्स होते हैं। बट डिबेंचर होल्डर कैन अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। यस, पर उनका इंटरेस्ट सेव करने के लिए डिबेंचर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? डिबेंचर ट्रस्टीज़ के लिए। ट्रस्टीज़ पे वेरी इंपॉर्टेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिबेंचर बिकॉज दे आर द वन हु आर सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। When the company goes into liquidation, जब कंपनी का अस्तित्व ख़त्म होने को आता है, it gets liquidated, वो ख़त्म हो जाती है जब उसका डेथ हो जाए, in our simple language, the debenture holders are paid their money on priority basis by selling the assets of the company। तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि पहले आप डेटर को ही ऑब्वियसली दोगे रादर देन गिविंग इट टू ऑनर्स, सो इनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है रादर देन दीज
rather than these shareholders. Okay, तो shareholders से ज़्यादा डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी देनी होती है जब उनका अमाउंट रीपे होता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, or in any of the time when it comes to repaying the money. The first one would be paid would be a debenture holder rather than shareholders. Okay, तो डिबेंचर होल्डर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है. Okay, अब so the next and the most important topic of this chapter is types of debentures. For this chapter में से ना सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर में, वो है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. तो ये बहुत बार बोर्ड में आ चुके हैं. प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसके हर एक टाइप, अगर जैसे फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो वो भी आपको एक अलग क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं. तो उसना कि अगर सारे टाइप्स ना पूछे तो स्पेसिफिकली कोई एक आध टाइप भी आपसे पूछ सकते हैं. So it should be very much clear that this question is very important for you to understand and to learn. और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आर समथिंग नो कि ये अभी तो नहीं, पर तुमको अभी तो एग्ज़ाम में आएंगे ही. ऑफ कोर्स चांसेस बहुत ज़्यादा है. प्लस जब तुम अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो या आगे जो भी पढ़ाई करोगे तो उसमें भी डिबेंचर्स आर नॉट गोइंग टू लीव यू, और वो आएंगे. तो जनरल सेंस में भी तुमको पता होना चाहिए, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, दैट व्हाट इज़ डिबेंचर. बट स्टडी वाइज ऑल्सो यू विल बी it will be helping to you, it will be asked to you in your exams and further studies also. One more thing that you should be aware of is you should be aware of what is the difference between shares and debentures. See, shares describes the ownership while the debentures are the borrowed money. वो आपके borrowers, they are the borrowers, right? You have borrowed the money from them. ओके, सो ये लोग जब कंपनी का एंड होता है या कोई भी चीज़ होती है तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि हमने उनसे उधार लिया है. बट शेयर होल्डर्स के लिए हम इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते क्योंकि वो ऑनर्स हैं. ओके, क्योंकि जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट उनको ही मिलता है, ऑनर्स को. पर अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो ऐसा नहीं है कि डिबेंचर होल्डर्स को ये लोग प्रॉफिट दे देंगे ज़्यादा. उनका तो जो फिक्स्ड अमाउंट है उनको वही मिलने वाला है. पर हाँ, अगर आप शेयर होल्डर्स हो तो आपको अगर प्रॉफिट ज़्यादा मिला है तो आपको शायद ज़्यादा भी मिलेगा, डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा. कई बार तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी इशू करती है. अगर उनको बीच में ही प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो बीच में भी वो लोग डिविडेंड इशू कर देते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. Types of debenture. For the convenience of the public, company management issue different types of debentures are issued. The debenture holders gives utmost importance to security of the money. पैसों की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है डिबेंचर्स में comparing to the shares. Types of debentures are mortgage debenture, fully convertible debenture, partly convertible debenture, and non-convertible debentures. Let's hear it one by one. So first is mortgage debenture. The company, by issuing such debentures, create a charge on the asset which can be fixed or floating. फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज तुमको आएगा आगे जाके. सो अभी बहुत उसमें डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ. सो पर एक चीज़ बता देती हूँ अबाउट चार्ज, दैट चार्ज इज़ नथिंग बट सिक्योरिटी विच अ कंपनी गिव्स यू. जब आप उनको बोरो करने के लिए पैसे देते हो तो आप भी बहुत बड़ी अमाउंट में उनको पैसे देते हो, राइट? तो आपको भी कोई सिक्योरिटी चाहिए दैट व्हाट इफ द कंपनी डज नॉट अर्न इनफ प्रॉफिट टू गिव अस इंटरेस्ट, या फिर हमारे पैसे जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वो उनके पैसे डूब गए तो हम क्या करेंगे? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, नो. तो इसीलिए ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कई बार कंपनी मोर्गेज क्रिएट करती है विच कुड बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग. फिक्स्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज, उसका अमाउंट फिक्स या फ्लोटिंग रहता है. फ्लोटिंग मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग. बट इन डिटेल में अभी तुमको आगे जब स्टडीज़ करोगे तो इट विल बी अराइजिंग. सो कंपनी बाय इशूइंग सच डिबेंचर क्रिएट्स अ चार्ज ऑन इट्स असेट
ओके, उसकी असेट पे चार्ज क्रिएट करती है कि ये उसकी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स की सिक्योरिटी के लिए है. द कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ डिबेंचर होल्डर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग दीज असेट्स. As I told you that trustees pay very important role in the in the debentures, because डिबेंचर होल्डर्स का भी चाहे आपने उससे मनी बोरो किए हैं पर उसके लिए भी कोई तो होना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट ना लैक्स में नहीं पर करोर्स में होता है. तो they need somebody who will look after such money, right? Who will look after so many people who have invested in debentures. तो ये जो ट्रस्टीज होते हैं डिबेंचर्स के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड बिफोर विदाउट देयर कंसेंट या उनके किसी भी, अगर आप ने उनसे कंसल्ट करे बिना अगर कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है, दे वॉन्ट बी कंसिडर्ड वैलिड. सो द कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन अप्रूवल, उनसे अप्रूव करवाना पड़ेगा पहले डिबेंचर होल्डर के ट्रस्टीज से, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग दीज असेट्स. कंपनी चलो पता चला कि स्टार्टिंग में बोल रही है कि हाँ ये असेट हमने डिबेंचर होल्डर्स के लिए रखी है, पर नाउ दे आर सेलिंग दिस असेट आउट एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग. तो फिर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सो डिबेंचर होल्डर्स आर फॉर दैट ओनली, सॉरी डिबेंचर ट्रस्टीज आर फॉर दैट ओनली, दैट दे विल बी लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ देम, राइट? So at the time of liquidation, the debenture holders have the first right on the asset of the company. ओके, अगर जिनके मोर्गेज डिबेंचर है जिनके पास, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं सारे डिबेंचर्स में से भी कि आपको सबसे पहले आपके अमाउंट रीपे होगा. सो दे आर द मोस्ट सिक्योर्ड डिबेंचर्स. इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर, मोर्गेज डिबेंचर्स आर द मोस्ट सिक्योर्ड वंस. ऑलराइट, turn the page, come to 113 page number. So the next it is fully convertible debentures. Now in accordance with the agreement with debenture holders, on completion of a specific time period, जैसे ही कुछ specific time period ख़त्म होता है, उसके बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देती है टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स. सपोज 10 साल के लिए उन्होंने इशू किया, फिर उनको बोलते हैं कि फुली कन्वर्टेबल है, तो उनको क्या ऑप्शन देते हैं कि 10 साल तक आप ये रखो, ठीक है. फिर उसके बाद कंपनी उनको 2 ऑप्शन देती है कि या तो आप अपने रिडीम कर दो डिबेंचर, मतलब डिबेंचर्स कंपनी को वापस कर दो और जो पैसे बनते हैं आप ले लो कैश, या तो फिर यू टेक द इक्विटी शेयर ऑफ द सेम अमाउंट, या तो आप उसके अमाउंट के आपको इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे. तो ये 2 ऑप्शंस कंपनी देती है. इफ़ द डिबेंचर होल्डर ऑप्ट्स फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, देन हिज राइट एज क्रेडिटर्स कम टू एन एंड. अगर जो फुली कन्वर्टेबल करवा देता है अपने डिबेंचर्स, तो उसके क्रेडिटर के राइट एंड हो जाते हैं, ओके. और वो क्या बन जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है, मतलब वो कंपनी का ऑनर बन जाता है, ओके. अगर वो फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर को ऑप्ट करता है तो, मतलब अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन बोलता है तो. नेक्स्ट इज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब वो आधे करवाएगा कुछ अमाउंट का, आधे नहीं करवाएगा. हियर द डिबेंचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. When the one part is fully convertible, the other part is non-convertible. The equity shares are issued against the convertible part, while non-convertible part is redeemed. इसमें हाफ पोर्शन दे देते हैं कि आपका सपोज 30-70 का रेशियो हो या 40-60 का रेशियो हो, तो जो रेशियो वो कंपनी प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से डिटरमाइन कर देते हैं कि यार इतना अमाउंट आपके पास ऑप्शन रहेगा कि 50% आप अपने शेयर्स को या 40% अपने शेयर्स डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दो और बाकी का अमाउंट होगा वो रिडीम हो जाएगा, मतलब आपको कैश मिल जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. नेक्स्ट वन इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब इसमें आपके डिबेंचर शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कभी भी होंगे नहीं. These debentures are not converted into equity shares. कभी भी equity shares में आपके debentures convert होंगे नहीं. The holders are paid their money back by redemption at the end of the specified
टाइम पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे होगा 10 साल, 20 साल, 25 साल, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा तो आपके शेयर डिबेंचर्स जो होंगे वो कन्वर्ट नहीं होंगे पर रिडीम हो जाएंगे और आपको आपका कैश वापस मिल जाएगा। सो दीज आर द मेन 4 टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ओके। सो दैट यू शुड बी नोइंग दैट mortgage डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सो यू शुड बी नोइंग दीज टाइप। तो ये टाइप आ सकते हैं तुमको 2 मार्क में, या फिर स्पेसिफिकली कोई एक भी बोल सकते हैं कि इन डिटेल में हमको एक्सप्लेन करो। सो अप टिल दिस फॉर डिबेंचर्स, अप टिल दिस वी विल कीप ओके। कैसे वो इशू किए जाते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, ओके उनके क्या राइट्स होते हैं, उनके क्या ड्यूटीज़ होते हैं, डिबेंचर्स के जो ट्रस्टी होते हैं वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो सारी डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का मेनली जो तुम्हारा होमवर्क है इज टू रिवाइज वॉट एवर वी डिड, प्लस यू हैव टू कंप्लीट योर फेयर बुक फॉर लेसन नंबर 1 and 2 without fail. Okay, you need to complete your fair book without fail. All right, so up till this we are keeping everyone. Thank you and have a nice day ahead.